اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مقصد ثالث کے بارے میں تھی اور ہے۔ مقصد ثالث مفاہیم کے بارے میں تھا۔ انہوں نے آپ کو مفہوم اور منطوق کی وضاحت بتائی، پھر آپ کو مفہوم کی دو قسمیں بھی بتائیں، موافق اور مخالف۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی میرے خیال میں وضاحت بھی میں نے کچھ آپ کو بتائی، آج مزید آپ کو وضاحت بتائیں گے، پیش کریں گے۔ تو آج ہم 3 امر پڑھیں گے، امر ثالث، امر رابع اور امر خامس۔ امر ثالث اس بارے میں ہے کہ یہ جو ہم مفاہیم میں جھگڑا کرتے ہیں، اگر یہ عام طالب علم والا ترجمہ کریں یا علماء والا ترجمہ کریں کہ یہ جو مفہوم کے بحث میں اختلاف ہے علماء کا، کیا یہ مفہوم حجت ہے یا مفہوم حجت نہیں؟ کہتے ہیں یہ الفاظ ایسے ہیں لیکن ان کے پس پردہ اصل مطلب کچھ اور ہے۔ مفہوم کے حجیت کا کوئی بھی مخالف نہیں، تو پھر آپ کہیں گے یہ اختلاف کس چیز کا کہ مفہوم حجت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اصل اختلاف یہ ہے کہ آیا اس جملے کا کوئی مفہوم ہے یا نہیں۔ وجود مفہوم میں اختلاف ہے، لیکن اگر مفہوم ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے حجیت میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ مثلا ان جاءکم زید فاکرم ہو، اگر زید آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی عزت کریں۔ بیٹا یہ جملے شرطیہ ہے، ان حرف شرط، جاء فعل شرط، فاکرم ہو یہ جواب شرط یا جزا، ٹھیک۔ اب ہم جو مولویوں کے اختلاف کو دیکھتے ہیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا جملے شرطیہ کا مفہوم ہے یا نہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ نہیں آئے تو اس کی عزت نہیں کرنا۔ اگر مفہوم ثابت ہو جائے تو حجیت میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حجیت کا اختلاف ہے یہ اختلاف صغروی ہے، کبروی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم پہلے کہتے ہیں کہ اس جملے کے لیے مفہوم ہے یہ صغرا اور ہر مفہوم حجت ہے یہ کبرا، تو کہتے ہیں مفہوم کے حجیت میں اختلاف نہیں ہے بلکہ صغرا میں اختلاف ہے کہ آیا اس جملے کا مفہوم ہے یا اس جملے کا مفہوم نہیں ہے۔ مزید اس کی وضاحت ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ امر رابع، امر رابع کہتے ہیں کہ مفہوم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھائی 2 قسمیں ہیں۔ بالول صاحب کتنی قسمیں ہیں؟ 2، موافق اور مخالف۔ مفہوم موافق اس مفہوم کو کہتے ہیں جس کا حکم اور منطوق کا حکم ایک جیسا ہو۔ یعنی اگر منطوق کا حکم حرام کا ہے تو مفہوم کا حکم بھی حرام کا نکلے، اگر مفہوم کا حکم واجب کا ہے تو منطوق کا، تو مفہوم کا بھی حکم کیا نکلے بیٹا؟ واجب نکلے۔ مثلا آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کو کندھے پہ اٹھاؤ، یعنی کندھے پہ اٹھانا واجب ہے۔ اب وہ میں آپ سے پوچھوں گا اگر میرے ہاتھ کے سہارے کی ان کو ضرورت ہو تو پھر کیا وہ دوں یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے جب کندھے پہ اٹھانا جس میں زیادہ زحمت ہے وہ مجھ پہ واجب ہے تو ہاتھ کی ٹیک دینا تو بطریق اولا واجب ہے۔ جبکہ جو آپ کو مولا نے کہا ہے وہ یہ کہا کہ والد کو کندھے پہ اٹھاؤ، ہاتھ کے ٹیک کا آپ کو نہیں کہا، لیکن یہ آپ اس جملے سے جو کہ منطوق تھا اس سے خود بخود سمجھ جائیں گے۔ یا اگر منطوق کا حکم بیٹا حرمت کا ہے تو مفہوم کا حکم بھی کیا ہے؟ حرمت والا ہو۔ اس میں ایک لفظ ہے سنخ، علی دوست، سنخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسائی، یعنی اگر منطوق کا حکم حرام کا ہے تو مفہوم بھی حرام پہ دلالت کرے تو دونوں حکم کا سنخ یعنی دونوں حکم ایک جیسے ہیں۔ مثلا ولا تقل لہما افن، اب افن کا ترجمہ فی الحال میں یہ کر دوں، اپنے ماں باپ کو نہیں ڈانٹو۔
अदा दड़ को न ॾियो पी माँ के। बेटा अब जब डांटना हराम हो गया, क्योंकि ला तकुल बहलूल साहब नहीं है और नहीं हुर्मत पे दलालत करती है, तो क्या मैं उनको मार सकता हूँ? साजिद साहब मार सकता हूँ? बेटा जब डांटना मना है तो मारना तो बतरीके औला मना हो जाएगा। तो अब इसको हम मफ़हूम में मुआफ़िक कहेंगे, क्योंकि मंतूक में भी डांटने को हराम किया गया है और मफ़हूम में मारने को भी हराम किया गया है। हो तो ये जो है क्या है मफ़हूम में मुआफ़िक। और मफ़हूम में मुखालिफ वो है जो मंतूक का हुक्म अलग हो, मफ़हूम का हुक्म कोई और हो। इन रुज़िक़्त वलदन फ़ख्तुन हो, अगर खुदा तुझे बेटा दे तो उसका ख़तना कराओ। अब इसका मफ़हूम ये निकालोगे, अगर नहीं दे तो ख़तना नहीं कराओ। देखिए मंतूक का हुक्म ख़तने कराने का था और मफ़हूम का हुक्म ख़तने न कराने का है, इसलिए इसको मफ़हूम में मुखालिफ कहते हैं। और मफ़हूम में मुखालिफ की बेटा 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6। वो आज नाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हफ्ते के दिन से फिर हम उनकी तफसील पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अम्र सालिसो, तीसरा अम्र, अन्निज़ाओ फ़ी बाबिल मफ़ाहिम, बाब मफ़ाहिम में ये जो इख्तिलाफ़ है सुगरवीयुन, ये कुबरवी नहीं है, सुगरवी है। यानी असले हुज्जियत में बेटा बहस नहीं है, बल्कि बहस इसमें है कि आया इसका मफ़हूम है या मफ़हूम नहीं। हुज्जत को सब मानते हैं। इन्ना निज़ाअ फ़ी बाबिल मफ़ाहिम सुगरवीयुन ला कुबरवीयुन, ये बहस सुगरवी है, कुबरवी नहीं है। व अन्न मदार अल बहस, और बेतहकीक हमारे बहस की मदार, मदार का मतलब क्या है? रफ्तार, गर्दिश, घूमना फिरना, हुआ वो ये है अन्नहु हल लिल कज़ा, ये शर्तियत मफ़हूमन औ ला। यानी हम बहस ये करते हैं कि जुमले शर्तिया के लिए कोई मफ़हूम है या नहीं है। यानी मफ़हूम के वजूद और अदम में बेटा इख्तिलाफ है, ठीक है। वो अम्मा अला फ़र्ज़ दलालत, लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें कि जुमले शर्तिया मफ़हूम पर दलालत करता है, वल इन्फ़िहामिल उर्फ़ी, और हम फ़र्ज़ करें कि उर्फ़ भी मफ़हूम समझता है, फ़ला इश्काल फ़ी हुज्जत ही, फिर तो उस मफ़हूम के हुज्जियत में कोई भी इख्तिलाफ़ नहीं है। वब इबारतिन उख़रा, अब यही मतलब आपको दूसरे लफ्ज़ों में समझाना चाहते हैं। अन्निज़ाओ फ़ी अस्ल ज़ुहूर जुमलत फ़िल मफ़हूम, असल हमारा इख्तिलाफ़ इसमें है क्या ये जुमला ज़ुहूर रखता है मफ़हूम में, व अदम ज़ुहूर हा, बेटा हा की ज़मीर जाएगी जुमला की तरफ, या ये जुमला मफ़हूम में ज़ुहूर नहीं रखता। फ़माना निज़ाए फ़ी मफ़हूमिल जुमलत शर्तिया, फिर क्या माना है कि आप इख्तिलाफ़ करते हैं जुमले शर्तिया के मफ़हूम में। भाई कोई मिसाल तो दे दें जुमले शर्तिया की। इज़ा सल्लम फ़अकरिम हो, जब वो सलाम करे तो फिर उसकी इज़्ज़त करना। हुवा, बेटा ये हुवा की ज़मीर कहाँ जाएगी? निज़ा की तरफ। वो निज़ा क्या है? अन्नल जुमलत शर्तिया, बेतहकीक जुमले शर्तिया मअक़त नज़र अनिल कराइनिल ख़ासा, हम उसके कराइन पर नज़र नहीं करें कि आया इसका जो है क्या मफ़हूम है या नहीं, यानी कराइन से हट कर खूब क्या है, हल तदुल्लो, क्या ये जुमला शर्तिया दलालत करता है अला इंतफ़ाइल हुक्म, कि हुक्म भी ख़त्म हो जाएगा, कौन सा? अकरम वाला। इन द इंतफ़ाई शर्त, जब सल्लम मुंतफ़ी हो, यानी जब वो सलाम न करे तो क्या इकराम करना भी ख़त्म हो जाएगा। वह हल ही ज़ाहिरतुन फ़ी ज़ालिक, क्या ये जुमला शर्तिया ज़ुहूर रखता है फ़ी ज़ालिक, इस इंतफ़ाई हुक्म में, औ ला, या इस इंतफ़ाई हुक्म में ज़ुहूर नहीं रखता है। व अम्मा बाद सबूत दलालत अलल मफ़हूम, लेकिन जब ये साबित हो गया कि जुमला शर्तिया मफ़हूम पर दलालत करता है, और ज़ुहूर हाफ़ी, या ये साबित हो जाए कि जुमला शर्तिया ज़ुहूर रखता है, ज़ुहूर हा की ज़मीर बेटा जाएगी जुमला शर्तिया की तरफ, फ़ी है की ज़मीर जाएगी मफ़हूम की तरफ। फ़ला निज़ा फ़ी हुज्जियत ही, फिर तो उसके हुज्जियत में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। साजिद भी मानता है कि हुज्जत है, अली दोस्त भी मानता है, अल्लामा हिल्ली भी मानता है, शेख अंसारी भी मानता है, सब मानते हैं। हो
व मिन खिलाल हादल बयान, कहते हैं ये जो हमने आपको सुगरा और कुबरा का इख्तलाफ बताया, खिलाल यानी दरमियान, इस बयान के दरमियान से यज़हर ज़ाहिर होते वजूद तसामुह, गोया मौलवी साहिबान ने जो है ना बेटा तसामुह किया है। तसामुह का मतलब यानी इतनी दिक्कत नहीं की है, हल्का मतलब को लिया है। मसलन मैं आपके मदरसे में आया, मुझे गुस्सा आया सिर्फ 2 तालिब इल्मों पे, मैंने कहा मैं तालिब इल्मों से बात नहीं करूँगा। तो अगर कोई तफसील मुझसे पूछेगा मैं कहूँगा भाई सिर्फ 2 से, सबसे नहीं, लेकिन ऐसे गुस्से में मैंने सब के लिए कह दिया। तो इन्होंने भी बस लापरवाही की और इन्होंने कहा कि आया मफ़हूम हुज्जत है या मफ़हूम हुज्जत नहीं। वरना बहलूल साहब हुज्जियत मफ़हूम में इख्तलाफ ही नहीं है, इख्तलाफ इसमें है कि आया ये जुमला मफ़हूम रखता है या नहीं रखता। फ़ी क़ौलिहिम, कि ये जो उलमा फरमाते हैं मफ़हूम शर्त हुज्जतुन औ ला, आया शर्त का मफ़हूम हुज्जत है या नहीं। फ़इन्न ज़ाहिरहु, बेटा ज़ाहिरहु की ज़मीर कहाँ जाएगी, कौल की तरफ। ये जो इन उलमा का कौल है इसका ज़ाहिर क्या है, अन्न वजूदल मफ़हूम मफ़रूगुन अन्हो, ये कहते हैं कि भाई मफ़हूम का होना मफ़रूगुन अन्हो यानी यकीनी है, उसको तो सब मानते हैं कि मफ़हूम है। व इन्नमल कलाम, और बेतहकीक हमारी बहस इसमें फ़ी हुज्जियत ही, क्या वो मफ़हूम हुज्जत है या नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, मानना हकीकत निज़ा, जबकि असल हमारा झगड़ा फ़ी वजूद असल मफ़हूम, असल मफ़हूम के वजूद के बारे में है। अल अम्र राबे, चौथा अम्र। खो बेटा अल अम्र राबे, चौथा अम्र, तक़सीमुल मफ़हूम इला मुखालिफिन व मुवाफ़िक़, मफ़हूम का तक़सीम होना या तक़सीम करना। अब ये बाब तफ़ईल है, इसलिए इसका तर्जुमा तक़सीम होना नहीं करें बेटा, बल्कि तक़सीम करना, बाँटना। मफ़हूम की 2 किस्में हैं, मुखालिफ है और मुवाफ़िक़ है। इन्नल हुक्मल मदलूल अलैह, बेतहकीक वो हुक्म जिस पर दलालत की जा रही है इस अल्फाज के ज़रिए, मिन तरीक़िल मफ़हूम, मफ़हूम के ज़रिए, इज़ा कान मुवाफ़िक़न, जब वो हुक्म मफ़हूम वाला मुवाफ़िक़ हो, किस बात में, फ़ि सिनख़े, सिनख़ यानी एक जैसाई में, यानी दोनों की जिन्स एक हो। मंतूक भी हराम तो मफ़हूम भी हराम, मंतूक भी वाजिब तो मफ़हूम भी वाजिब। अल मौजूद फ़िल मंतूक, अल मौजूद सिफ़त हुक्म की, वो हुक्म जो कि मौजूद है मंतूक में, फ़हुवा मफ़हूमुन मुवाफ़िक़, तो इसको मफ़हूम मुवाफ़िक़ कहते हैं। कमा फ़ी क़ौल ही सुब्हानह, जैसे अल्लाह ताला का कौल है, फ़ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ़ भी नहीं कहो बेटा। उफ़ भी एक किस्म का यूँ समझें डांटना है, अलबत्ता उसमें लफ्ज़ नहीं होता है, बस ज़रा होंठों को बना के आप जो है क्या है एक किस्म के जो बड़ी सांस लेते हैं, जिसको हम सिंधी में शुकारो बोलते हैं, जैसे गुस्सा आते हैं, ये कहते हैं माँ बाप को ये भी नहीं कहो, यानी ये भी कहना हराम है। अच्छा, तो अब मैं पूछूंगा तो उनको मारना, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल हराम है। अब देखें मंतूक वाला भी ये है कि हराम है उनको डांटना, मारना भी हराम है। फ़हुरमत ताफ़ीफ़, पस ये डांटने का हराम होना तदुल्लु दलालत करता है बिल औलवियत बेतरीक़े औला अला हुर्मत शत्म, कि भाई उनको गाली गलोच देना बतरीक़े औला हराम है। व रुब्बमा युसम्मा, और कभी कभी नाम रखा जाता है किसका बेटा, मफ़हूम मुवाफ़िक़ का, लहनल खिताब, उसको लहनल खिताब भी कहते हैं। अब मैं लहन इसलिए पढ़ रहा हूँ मनसूब, क्योंकि ये युसम्मा का दूसरा मफ़ूल है, इसमें पहला मफ़ूल हुआ की ज़मीर जो नायब फ़ाइल है वो जा रही है मफ़हूम मुवाफ़िक़ की तरफ, और मफ़हूम मुवाफ़िक़ का नाम रखा गया है लहनुल खिताब। व अम्मा लौ कानल हुक्म फ़िल मफ़हूम, लेकिन अगर मफ़हूम वाला हुक्म मुखालिफन, मुखालिफ फ़ि सिनख़, सिनख़ यानी जिन्स में, एक जैसाई में, उस हुक्म के अल मौजूद फ़िल मंतूक, जो हुक्म मौजूद है मंतूक में, फ़हुवा मफ़हूमुन मुखालिफ, तो इस मफ़हूम को तकीशा क्या कहते हैं। खूब आवाज़ नहीं आ रही बेटा। व अम्मा लौ कानल हुक्म, खूब, तो ये मफ़हूम मुखालिफ है। अल अम्रुल ख़ामिस, 5वां अम्र, अक़साम मफ़हूमिल मुखालिफ, मफ़हूम मुखालिफ की अक़साम। इल्म, तू जान ले, इल्म कौन सा फ़ेल है अली दोस्त, नज़दीक हो के बताओ, शाबाश।
अन अलमवारिद अल्लती बेतहकीक वो मवारिद वक़अत महल निज़ा जिनमें इख्तिलाफ़ हुआ है फ़ी मफ़हूम मुखालिफ मफ़हूम मुखालिफ के हवाले से इबारतुन बेटा वो मवारिद इबारतुन इबारत की मुख्तलिफ़ जुमलों में मुख्तलिफ़ माना होती है यानी उनकी तफसील अम्मा यली वो है जो अभी आ रही है। ठीक, एक मफ़हूम शर्त है, दूसरा मफ़हूम वस्फ़ है, तीसरा मफ़हूम गायत, चौथा मफ़हूम हसर, पाँचवा मफ़हूम अदद, छठा मफ़हूम लक़ब व इलैका तफसील। और ये आपकी तरफ हम तफसील पेश कर रहे हैं। तो अब मैंने इन अल्फाज की बेटा वजाहत नहीं की क्योंकि हम हफ्ते के दिन से इंशाअल्लाह ये बहस पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि दर्स समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह मुताला मुबाहिसा अच्छे तरीके से करेंगे। आज आपका दर्स ज़्यादा नहीं चला, ये 16 मिनट चला है। अब 16 मिनट के दर्स की भी अगर आप हफ्ते के दिन अच्छी तैयारी नहीं करके आए तो फिर झगड़ा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।